کورٹ میں سٹے پوزیشن پہ ہے اور 16 تاریخ کو ہم سے جھوٹ بولا گیا، تنخواہ ریلیز کر دیا گیا. کتنا 1,35,000. سر یہ گورنمنٹ خزانے کے اوپر کیا بوجھ نہیں ہے؟ 1156 لوگ واقعی میں آئی ڈی پیز ہے. اگر اپنے جگہ سے وہ ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں تو 1,09,000 روپے ان کو دے دی، ان کے چیک تھما دی. یہ تو چیک نہیں تھا، میرے خیال میں کوئی تعویذ تھا کہ آپ باہر دروازے پہ لگائیں، نیکسٹ ٹائم کوئی پتھر آئے، زلزلہ آئے تو آپ شاید آپ کی جان بچ جائے. 6 سے 7 مہینے جو جن بندوں کو آپ اسکردو آپ نے بیچ دیا ہے وہ 1,09,000 میں گزارا کر سکتے ہیں اس دور میں. عاشق بھائی سے میرے جیسا ایک سوال ہے، 1.5 سال گزر گیا ہے سر، آپ کو ابھی آتا ہے 1.5 سال؟ حکومت کے کوئی پروسیس ہوتے ہیں، حکومت کے کوئی ایک نظام ہوتے ہیں سر، 1.5 سال گزر گیا آپ کو ابھی آتا ہے. السلام علیکم. IMN میں خوش آمدید. شبیر میر آپ کا ہوسٹ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان سیلاب کے حوالے سے، اور ایک خاص ایریا کو ہم فوکس کریں گے سیلاب کے حوالے سے. وہ ایریا کون سا ہے، اس کے کچھ اور بھی مسائل ہیں، وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ایریا کون سا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال زلزلوں کی زد میں گلگت بلتستان آیا تھا، اس میں بھی ایک خاص علاقہ تھا جو زیادہ متاثر ہوا تھا، اور اسی علاقے میں کچھ بھرتیاں ہوئی تھیں، اور وہ بھرتیاں تھیں فارسٹ گارڈز کی، کوئی 30 کے قریب. اور لیکن پھر وہ معاملہ کٹائی کا شکار ہو گیا، عوام کو ریزرویشنز تھیں ان بھرتیوں کے حوالے سے. وہ کیا معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس علاقے کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ راجہ ناصر ہیں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سب ڈویژن رندو کی بات کر رہا ہوں. نگلیکٹڈ ایریا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایریا نگلیکٹڈ ہے، کیوں ہے. جیسے میں نے یہ مسائل بتائے، ان کی ڈیٹیل کے اوپر ہم جائیں گے تو آپ کو یقیناً اندازہ ہو جائے گا. میرے مہمان سارے 3 مہمان ہیں، تینوں کا تعلق سب ڈویژن رندو سے ہے. میں تعارف کروائے دیتا ہوں. پہلے مہمان ہے عاشق جمشید. انصاف یوتھ ونگ سے ان کا تعلق ہے، حکومت سے ہی، اور کچھ شکایات اپنی ہی حکومت سے ہیں. وہ کیا ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. اور میرے دوسرے مہمان وزیر زیگم ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پڑھے لکھے جرنلسٹ بھی ہیں رندو سے، ان سے بھی بات کریں گے. اور میرے تیسرے مہمان وزیر آصف، پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ رندو کے. میں آتا ہوں سب سے پہلے عاشق صاحب آپ کی طرف. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا پروگرام میں آنے کے لیے. میں عاشق صاحب کی طرف جاتا ہوں. عاشق صاحب یہ بتائیے، پہلی بات تو آپ خود انصاف اسٹوڈنٹ ونگ کے DS ہیں، ڈپٹی سیکرٹری، اور آپ کی حکومت بھی آپ ہی کی ہے، وزیر موصوف بھی آپ ہی کی حکومت کے ہیں. تو یہ مسائل ہیں، کیا ان سے آپ کا رابطہ کم ہے، وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ مجھے پہلے اس کے بعد بتائیے، اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں ایشوز کے اوپر. سب سے پہلے شبیر میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ وقتاً فوقتاً عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں عوام کے ساتھ دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ آپ کا جو عہدہ ہے انصاف یوتھ ونگ گلگت بلتستان کے آپ عہدیدار بھی ہیں، عوام سے آپ کے جو حکومت سے آپ کے رابطے میں کوئی کمی ہے یا کچھ اور ایشوز ہیں. سر بیسیکلی یہ ہے کہ ہم یہ جو جتنے بھی ایشوز ہیں ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے بات یہ کہ یہ CM صاحب کے نوٹس میں بھی ہیں، ہم نے ڈال دیے باقاعدہ ان کو یہ نوٹس، ہم نے ریٹن فارم میں بھی دیے. اور جب انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے کہ CM صاحب وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا علاقے کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں یا وہ الیکٹڈ جو ممبر ہے اس کی طرف ہمارے ایشوز کو ریفر کرتے ہیں. ٹھیک. تو ہمارے ایشوز یہ راج ناصر کے نوٹس میں تمام تر ایشوز اس وقت ہے. میں نے خود واٹس ایپ کے ذریعے سے، وائس میسیج کال کے ذریعے سے ہم نے یہ تمام ایشوز اس کے SOPs میں ہم نے ڈال دیے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ سر ہمارے تو راج ناصر صاحب سے بڑے ایکسپیکٹیشنز تھے. رندو میں پہلی بار جو اگر منسٹری اگر وزارت ملی ہے تو وہ راج ناصر کے پاس آئی، تو ہم بڑے ایکسپیکٹ کر رہے تھے یقیناً عوامی ایشوز کو وہ سب سے مین پریورٹی میں وہ حل کریں گے. لیکن بدقسمتی سے جس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ ہم جو ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے، اسپیشلی یوتھ کی بڑی ایکسپیکٹیشنز تھے، یوتھ کا فیئر بھی ہیں، لیکن اس پہ نہیں اترا. وہ خود بھی تو یوتھ ہیں، لیکن کیوں، وجہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر بتانا پسند کریں گے کہ کیوں نہیں، کوئی اس تک ورسز کوئی ایسا ہی ہے سر معاملہ چل رہا ہے. سب سے پہلے تو سر رندو میں جو یوتھ ہے راج ناصر کی نظر میں، آئی تھنک کہ جہاں تک میں اس چیز کے اوپر تجزیہ کر رہا ہوں، وہ ترجیحات میں ڈفرینسز ہیں. ٹھیک ہے. ستک سر واحد ایک علاقہ ہے جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے. اب ستک کا ایک فینومینا یہ ہے کہ ستک واحد علاقہ ہے جہاں سے 90% ووٹ باہر نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس کی وجہ سے اس بار انفارچونیٹلی
हमारे पास वज़ीर हसन साहब और एडवोकेट साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो इसलिए कंटेस्ट किया एक दूसरे को हराने के लिए, पॉलिटिकल अना की वजह से इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री जो मेंबर असम्बली का सीट हमारा रुंदूस तक से बाहर चले जाते हैं। वो इसलिए फोकस नहीं होता है किस तक से हमारे लिए वोट नहीं मिले। ठीक है, इस वजह से यकीनन यही वजह है सर हमारे सही। यकीनन मैं राजा साहब से, बड़े अच्छे हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं आपके तवसुत से भी पूछूंगा और डायरेक्ट भी पूछूंगा कि आखिर वोट ना देने की सज़ा ये तो नहीं होनी चाहिए वज़ीर साहब कि लोग साल से टेंटों में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स रहते रहें और फिर ऊपर से सैलाब भी आ जाए। तो अगर वोट ना भी दें तो आप कुछ कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको वोट दें, अगर ना भी दें नेक्स्ट टाइम भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है राजा साहब, याद रखिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये फॉरेस्ट गार्ड का क्या इशू है? कितनी असामियाँ थी जिनके ऊपर अपॉइंटमेंट्स हुई, फिर हुआ क्या? सर ये इशू आज का नहीं है, ये इशू तकरीबन पिछले एक साल से चला रहा है। ठीक है, नंबर 1 ये है, ये नोटिस में होनी चाहिए, राज साहब के भी नोटिस में है। इशू ये है सर, इशू ये है कि इसमें गैर कानूनी भर्तियाँ हुई। गैर कानूनी भर्तियाँ कैसे हुई? जो मुआहिदा मैं अभी लेकर आया हूँ, मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, मुआहिदे की पामाली हुई। मुआहिदा किस तरह होना था? मुआहिदा किनके दरमियान? डिपार्टमेंट जी डिपार्टमेंट और आवाम के दरमियान। सबसे पहले आवाम और डिपार्टमेंट के दरमियान खुली कचहरी के ज़रिए से बाकायदा जो है ना सर कमेटी तश्कील देना था, जिसका नाम कंजर्वेशन कमेटी, और आवाम और महकमे ने ये डिसाइड करना था आज के बाद ये 6 बंदे हमारे कमेटी के मेंबरान हैं, इसमें से ये फलान हमारे चेयरमैन हैं। अब वही चेयरमैन आवाम के साथ मिल के उसमें से जितने भी इंक्लूजर के हिसाब से 32, 36 या 30 जितने भी निगहबान लगने थे उनका नाम फाइनल करना था, ठीक है, ऑन द डिजर्विंग बेसिस पे। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कमेटी खुली, कमेटी कोई नहीं बनी। यहाँ तक कि मैं यह आपको बता दूं कि ये हैरानकुन बात ये है कि वो निगहबान की अपॉइंटमेंट्स आए, आवाम को पता ही नहीं है। ठीक है, हमारे उसका अभी जो चेयरमैन जो बना हुआ है बजात खुद हमने किसी को कोई चेयरमैन नहीं बनाया क्योंकि आवाम के नोटिस में नहीं है। ठीक है, अहमद अली शाह साहब नाम किसी को उन्होंने चेयरमैन बनाया और सपोर्ट किया। मैं यहाँ पे ऑन द कैमरा बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के नुमाइंदे जिन्होंने दोनों ने इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, एडवोकेट अब्बास साहब और वज़ीर हसन साहब, जब तक इन दोनों की सपोर्ट किसी माफियाज के साथ न, वो कैसे करप्शन कर सकते हैं? मैं तो सोचने का मकाम है। अब इन्होंने क्या कर दिया, रातों रात इसके ऊपर अपने मर्जी से वैकेंसी वो जो निगहबान है डिस्ट्रीब्यूट किए, कहा कि भाई कुछ आप नाम दे दे, कुछ आप नाम दे दे, कुछ आप नाम, कुछ मैं देता हूँ। शायद मैं भी पॉसिबल कि सुनने में आए 4 नाम तो राज नासिर साहब ने भी दिए। अच्छा, ठीक है, वो गए भाई, 4 महीने के बाद लोगों को पता चला कि भाई तक फॉरेस्ट के अंदर भी कोई गार्ड्स भर्तियाँ हुई। अब लोगों ने तहकीकात शुरू किया, करने के बाद महकमे से रुजू किया, कहा भाई आप हमें नेम रोल दे दें, किस किस को आपने लिया। सर सबसे बड़ी करप्शन ये है कि महकमे के हवाले से मैं बताता चलूँ, 1 साल तक नेम रोल्स, वहाँ के जो निगहबानों की अपॉइंटमेंट्स नेम पब्लिक ना होना, यह महकमे के ऊपर सबसे पहला सवाल। महकमे का कहा गया होगा ना? जी क्या आप इसको दबा के रखें? दबा के डेफिनेटली सर नहीं हुआ। चलो हम बाद में, मैं जब यहाँ से गए तो पिछले बार मैंने इस चीज़ को, इशू को हाईलाइट किया। मैंने कमिश्नर साहब से बाकायदा शुरू से लेकर आखिर तक इसमें जितने भी इलीगल्स हुए हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, मैंने उनके थ्रू जो है ना बाकायदा उनसे शेयर की। उसने कंजर्वेटर डेफो दोनों को बताया, हमारी इंक्वायरी भी हुई। कमिश्नर साहब ने बड़ा एक्टिव उन्होंने सर हमारे साथ दिए। शुजा आलम साहब ने उन्होंने यकीन दहानी कराई हमारे साथ। उसमें कंजर्वेटर साहब भी थे, डेफो भी थे, हमारे जो इलाके के नुमाइंद जो साबिका जो पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ीर हसन साहब भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। हमने अपनी रिजर्वेशन पेश किया और महकमे ने कहा कि भाई यहाँ पे हमारी कुछ डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं, इस पे हम बिल्कुल बात करने को तैयार हैं। कल परसों करता करता सर आज तकरीबन महीना और गुजरने को है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आखिर में जब मैंने थोड़ा प्रेशराइज किया तो ये 39 जो 32 बंदे हैं सर, वो डी नोटिफाई किए उन्होंने। ठीक, डी नोटिफाई किया। मुझे कहा गया था कि 20 दिन के अंदर आपकी रिजर्वेशन से अवामी बेस पे हम इसको पूरा करेंगे, नहीं हुआ। तीसरी बात सर, उसमें 32 में सिर्फ तक से नहीं है, प्रोजेक्ट्स तक का है, 3 बंदे तक के बाहर से भी लिए गए। आवाम को कब पता चले? 9 महीने के बाद। चौथा सबसे बड़ी करप्शन सर, मोस्ट ऑफ निगहबान जो है वो इलाके से बाहर है, बाहर के इलाके से बाहर के लोगों को लेकर, कोई इस्लामाबाद में, कोई पिंडी में, अच्छा, सेटल रहते उधर हैं, रहते हैं वहाँ के लोग, लेकिन बाहर हैं। ठीक है। जब 9 महीने के तनख्वाह इशू कर रहे थे, देखो सर यहाँ पे कोड वायलेशन भी हुई। वही चेयरमैन साहब मुझे बता रहे कि भाई 22 जून को हमारे कोर्ट में पेशी है,
हमने ना किसी को तनख्वाह रिलीज़ की है, ना हमारे फॉरेस्ट के अंदर कोई वर्किंग हुआ है। बाकायदा कोर्ट में सिटे पोजीशन पे है और 16 तारीख को हमसे झूठ बोला गया, तनख्वाह रिलीज़ कर दिया गया। कितना? 1,35,000। सर ये गवर्नमेंट ख़जाने के ऊपर क्या बोझ नहीं है? तनख्वाह रिलीज़ कर दी गई, तनख्वाह नो वर्किंग के ऊपर सर। ठीक है। किसी ने, मैं बता दूं, 80 से 90% निगहबानों ने कोई काम नहीं किया। सर इतना बड़ा करप्शन होता है हमारे पास, चूँकि खामोश रहे। थोड़ा सा वक्त महदूद है। आशिक साहब, मुझे ये बताइए कि वज़ीर आला भी आप ही के हैं, आप उनसे मिले हैं, आपने उनको बताया, आप तो वो जो गालिबन नाराज़ भी हो जाएंगे कि आपने ये क्या किया, जाके पब्लिक में ये बात उठाई। जी जी सर, पब्लिक में देखो आखिरी लास्ट ऑप्शन था मेरे पास। यकीन करें सर, मैं भी नहीं चाहता था कि मैं इसको मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू में, हालांकि नाराज़ नहीं होना चाहिए, अगर उनके नोटिस में नहीं है तो आप नोटिस में लेके आ रहे हैं। क्योंकि देखें, मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया सिर्फ एक वर्ड की वजह से सर, वो है इंसाफ। मैं अपना लाहेमल भी बता दूंगा सर, अगर इस फॉरेस्ट में होने वाली करप्शंस के ऊपर इंक्वायरी नहीं होता है, अगर इसके ऊपर बाकायदा एक्शन नहीं लिया जाता है, तो मैं अपना लाहेमल भी मैं आज बता दूं, बाकायदा ऑनर में बता देता हूं कि मेरा लाहेमल ये है कि मैंने एप्लीकेशन भी लिखा है। कल मैं FIA डायरेक्टर को मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं लीगल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, कमेटी के जामे आप लीगल इन्वेस्टिगेशन करें। मैं गलत है, कमेटी आके बता दें, फॉरेस्ट आके, डिपार्टमेंट आके मुझे बता दे कि भाई आप गलत है, आपने ऑफेंस किया है, मुझे अंदर कर दें। नंबर 1। नंबर 2, मैं नेब को भी सर बाकायदा मैं एप्लीकेशन जारी कर रहा हूँ। ये सारे जब तक आपकी हुकूमत आप ही की है, ये तो आपके खिलाफ क्या कुछ करेंगे? ये तो कुछ नहीं करेंगे सर, इंशाल्लाह हम करेंगे। अदलिया पे मुझे यकीन करें, मैं इस चीज़ के ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ। अदलिया इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे। जो इदारे हैं हमारे पास जो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर हम अवामी रिजर्वेशन, अव्वल तो ये है कि सर हमने इस एक्शन को, इसमें जो करप्शंस है इसके ऊपर बात की है, अभी बात की है, तो क्योंकि इस रिजर्वेशन को पूरा करना, इसके ऊपर एक्शन तक लेकर आना मेरा बेसिक मकसद है। मैं इंशाल्लाह इससे पीछे नहीं हटूँगा। ठीक है आशिक साहब, मैं जैगम साहब की तरफ से आता हूँ, ज़रा और इश्यूज़ के ऊपर भी हमने बात करनी है। वज़ीर जैगम साहब, आप ख़ुद जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट तो खैर हम सब हैं। मुझे ये बताइए कि ज़लज़ला मुतासरीन के हवाले से हमने एक प्रोग्राम काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पे किया था, इस इशू को रिपीटेडली डिस्कस भी किया। क्या सूरत हाल है आज के दौर में, आज की तारीख पे? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें हमारी आवाज़ बनी रुंदू की। सर जो अफेक्टेड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है अब भी। देखें सर, यहाँ पे बात सर हमारे बराबरी की नहीं, इंसाफ की है। ठीक है सर, यहाँ पे राजा साहब ने लास्ट टाइम एक डीजी प्रोग्राम में सुन रहा था, राजा साहब बड़े प्राउड के साथ, फ़ख्र के साथ कह रहा था कि मैंने जो रुंदू के मुतासरीन हैं, जो IDPs है, उनके लिए मैंने 12 करोड़ समथिंग लाया। मेरे ख्याल में राजा साहब को सर झुका के ये बात कहना चाहिए था, क्योंकि अगर 1156 लोग वाकई में IDPs है, अगर अपने जगह से वो डिसलोकेट हुए हैं, तो 1,09,000 रुपये उनको दे दिए, उनके चेक थमा दी। ये तो चेक नहीं था, मेरे ख्याल में कोई तावीज़ था कि आप बाहर दरवाजे पे लगाएं, नेक्स्ट टाइम कोई पत्थर आए, ज़लज़ला आए, तो आप शायद आपकी जान बच जाए। 1156 लोग आपने कहा IDPs, ऑफिशियली ये फिगर है। राजा साहब, एक दफ़ा फिर मैं आपकी तरफ आप ही को मुखातिब करके कह रहा हूँ कि 1156 है। आप बाकी शायद किसी प्रोग्राम में आके फिर बताएं, ये आपकी मतलब याददाश्त के लिए। जी सर, बिल्कुल मैं ये ऑफिशियली बता रहा हूँ, जो हमारे तहसील से, अब जाहिर बात है सर, तहसील से तो हमें डेटा मिलता है। ठीक है। एक तो मुझे इस बात पे ताजुब है सर, जब मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं SC के पास गया, मैं डिप्टी कमिश्नर चुगताई साहब के पास गया, मैं कमिश्नर साहब के पास एप्लीकेशन लेके गया। मैंने कहा सर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो 1156 बंदों को आप लोगों ने कहा कि ये IDPs है, सर काइंडली एक दफ़ा नाम पब्लिक कर दे। होता ये है सर, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनको पब्लिक कर देना चाहिए। एक तो उन्होंने पब्लिक किया नहीं, साथ में मुझे SC साहब, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रुंदू, ये बता रहे हैं कि आप जाके कमेटी से वो लिस्ट ले लें, क्योंकि ये लिस्ट हमने नहीं बनाया, ये लिस्ट आपके कमेटी ने। नहीं तो कमेटी के पास लिस्ट है, तो वो उधर से आपको मिल सकती है। सर मिल सकती है, कोशिश मैंने की, दिया नहीं सर। अच्छा, कमेटी पे नहीं दिया, नहीं दे रही है सर, वो कमेटी हमें लिस्ट प्रोवाइड कर नहीं रहा है। अब देखें सर, मैं कमेटी से क्यों मांगूँ? मैं एज अ जर्नलिस्ट या मैं कोई उस इलाके का बाशिंदा हूँ, मैं अपने लोगों से जाके, सर मेरा काम तो आपके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस या तहसील ऑफिस से लाना है, आपका काम है मुझे प्रोवाइड। जैगम साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोक रहा हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि 1156 जो लोग हैं मुतासरीन, किस हालत में रह रहे हैं, ये किधर रह रहे हैं? सर देखिए ना सर, ये
फिर वही बात सर, असिस्टेंट कमिश्नर उर्दू उस पर बात आती है, कमिश्नर साहब पे बात आती है। ये मकान के अंदर रह रहे हैं, लोगों के रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, किधर रह रहे हैं? वही सर मैं एक्सप्लेन करूँ सर, इन्होंने ये IDPs का लफ्ज़ जो ही इस्तेमाल किया, हमें समझ आती है भाई उन एरियाज में थ्रेट है, उनके जान को ख़तरा है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी आप उनको ऐसी किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे उनके लिए थ्रेट ना हो। जब थ्रेट खत्म हो आप वापस बेशक ला के रख दें। आप 1156 जो आपने लिस्ट जारी किया है, जिनको 1,09,000 समथिंग आपने चेक थमाया है, क्या वाकई में 1156 बंदे उन खतरे जो जिन जगहों पे पहले रहते थे वो वाकई में क्या शिफ्ट हुए हैं सेफ प्लेस पे? नहीं हुए सर, वो अब भी उसी जगह पे। अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा सा भी झटका है, अब आप बताएं कि वो जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, मतलब ये बाकायदा डिफॉल्ट जोन इसको करार दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, उसके फिर कुछ SOPs हैं। बिल्कुल सर। IDPs इनको डिक्लेयर किया गया है, लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन की हद तक है, उसके बाद यही आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल। उसके बाद से उनके जो लवाजमात हैं कोई पूरे नहीं किए गए। सर देखिए ना, आप मुझे ये बताएं, गिलगित सिटी या स्कर्दू सिटी या कहीं भी सेफ प्लेस पे इनको शिफ्ट करना था, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। आपने IDPs का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, CM ने बड़े फ़ख्र से कहा मैं 12 करोड़ 1,02,000 सबको दे भी दिए। आप मुझे बताएं क्या 6 से 7 महीने जो जिन बंदों को आप स्कर्दू आपने बेच दिया है, वो 1,09,000 में गुजारा कर सकते हैं इस दौर में? आपका मकान किराए का हो, आपके किचन के अखराजात है, आपके स्कूल, अब तो स्कूल ओपन हुए, बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे, बच्चों की फीसें कौन पे करे? सर इसमें तो बड़े प्रॉब्लम है। 1,02,000 अब हकीकत में अगर हम देखें सर, जो 1156 बंदे हैं, अब देखें सर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्टे ऑर्डर निकला है, वो चेक इशू नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वो लोग बता रहे पहले जो एग्जैक्ट फिगर था जो IDPs थे वो 820 थे, अचानक से एक रात बाद वो 1156 हो गए। अब वो पैराशूटर जिसको आज ज़्यादा नाम ले रहे हैं वो कहाँ से आए? भी ठीक है, मुझे ये बताएंगे एज जर्नलिस्ट आपने इसको कोई रिपोर्ट बनाई है, कोई कम्प्रिहेंसिव, कोई कहीं पे इसको पब्लिक किया है आपने? जी सर, एज ए जर्नलिस्ट मैं तो चाह रहा था पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर करूँ सर, डेटा में वो आपको नहीं मिला पूरा? नहीं सर, मैं पब्लिक डॉक्यूमेंट उनसे बार मांग रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट में उनके पास कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप मुझे दे दें, तो मना कर रहे हैं, दे नहीं दे, कह रहे हैं कि आप कमेटी से ले लें आप फलान। क्या हाल आपको नजर आता है इसका कि ऐसा क्या करें कि ये हुकूमत मान जाए, वजीर राजा साहब को एहसास हो आपके मसाइल का, खुद ही इस इलाके के बाशिंदे हैं। मैं तो यहाँ से 2-3 दफ़ा डायरेक्ट भी कह चुका हूँ। शायद साहब को तभी एहसास होंगे ना सर जब वो हमारे इलाके में रहें, कभी आप दुबई घूमने, ठीक है बेशक वो जाएं, कोई बात नहीं सर, आप जाएं, कभी आप इस्लामाबाद में इमरान खान के पास, सर देखें ना सर, आपके इलाके में इस वक्त बहुत ज़्यादा समझे सर तबाही मची हुई, और आप कभी कितनी दफ़ा आए हैं आपके पास, उस कम्युनिटी के पास राजा साहब खुद? मेरे ख्याल में वो तो आए हैं सर, अब राजा साहब आए हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई लोग तवक्कुह करते हैं हमारी आवाज़ है, अब वो आवाज़ नहीं बने ना सर। आप कभी कह रहे कि मैं बड़े प्राउड के साथ, मुझे इस बात पे मैं बार मेरे मुबारक कह रहे कि मैं 12 करोड़ समथिंग मैंने रखवा दी, अब बाद में पता चला 1,09,000 पर हेड को मिल रहा है। अब वो बेचारे खाने की चीज़ें लाई अगर के किराए थे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। राजा साहब जो एक्सपेक्टेशन एज ए यूथ, मैंने सोचा था कि नए फेस इस बार उर्दू में उभर के आए हैं, राजा साहब तो तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है? अब भी है? अब शायद नहीं है सर, लेकिन हम कह भी नहीं सकते सर, क्योंकि फिर ये आपको पता कुदरती आफात से किसी भी उतार से अब इसको रोक भी नहीं सकते। ये है कि हमारा काम था कि हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी थी कि आ जाए तो हमने सेव करना, तो वो ही नहीं। ठीक है, आपने IDPs मुकर्रर भी किया, नाम भी दिए, लेकिन वो घर अभी भी उसी जगह पे हैं, वो पत्थर भी उसी जगह पे हैं। किसी भी टाइम दोबारा खुदा न खास्ता आफ्टर शॉक आ जाए, पत्थर गिरेंगे या जो मकानात कमज़ोर है वो गिर के जाने जब नुकसान होंगे ना सर, फिर ये देखें ये लोग फिर अपने चेहरे छुपाए फिरेंगे। ठीक है जगम साहब, मैं शायद अगर प्रोग्राम में वक्त हुआ दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैं ज़रा वज़ीर आसिफ साहब की तरफ सैलाब के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जी वज़ीर आसिफ साहब, मुझे ये बताएं, सैलाब तो पूरे पाकिस्तान में है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हालत ख़राब है सैलाब की वजह से लोगों की। आपके एरिया में, रुंदू में या इस तक में क्या सूरत हाल है सैलाब की वजह से? सबसे पहले आपका शुक्रिया सर, आप हमारे आवाज़ बनी। सर ज़िलज़ला मुतासरीन के बारे में बताता चलूँ कि रुंदू में 2 बड़े यूनियन हैं सर, तोरमिक यूनियन और स्तक यूनियन। सर स्तक यूनियन के आपको बताता चलूँ कि स्तक यूनियन में सर 2 गाँव शनु और तुगला सर मुकम्मल तौर पर डैमेज हुआ है सर, लोगों के घर तबाह, मौशखाने तबाह, खेत तबाह हुआ है सर। तो सर हुकूमत की तरफ से इनको कोई रिलीफ, 1 रुपये का रिलीफ नहीं है सर। 1 माह पहले सैलाब आया सर, अभी तक कोई रिलीफ नहीं है, रिहेबिटेशन का कोई प्रोग्राम नहीं है, या हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है सर।
तो मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है सर। वज़ीर साहब, इस वक्त भी बारिशें हैं, इस वक्त भी सैलाब है। आप एक माह पहले वाले सैलाब की बात कर रहे हैं, Yes, ठीक है? तो इस सैलाब में, इसमें ताज़ा तरीन, जैसे आज शायद बारिश नहीं हुई है, तो कल तक दोबारा से नुकसानात, तबाही नहीं हुई आपके एरिया में? सर कल ही ऊपर से सैलाब आई है सर, बस नीचे गाँव आने से रुक दिया, मतलब गाँव आने से पहले रुक गया है सर। ठीक है। तो उनके लिए हुकूमत की तरफ से रिहेबिटेशन का कोई निज़ाम नहीं है सर। अभी वही सैलाब कोई बंद वगैरह बांधे गए हैं, कोई एहतियाती तदाबीर, एहतियाती बंद वगैरह हैं आपके? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं बांधा? कुछ भी नहीं सर। उसी सैलाब के ऊपर सर लोग मतलब टेंट लगा के उधर ही उसी खेत पे बैठा हुआ है सर। ठीक, ये हुकूमत की तरफ से कोई कमेटी आके कोई हिसाब किताब नुकसानात का जायज़ा लेना, कुछ ये भी नहीं हुआ? सर हमारे कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने एहतजाज करने के कॉल की, तो हुकूमत की तरफ से 2 पटवारी आके नाम लिस्ट बना के ले गया सर, कोई अमली तौर पर काम नहीं हुआ। अच्छा, कोई एस्टिमेट गया है, इसका मतलब है नुकसानात का? आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जस्ट लिस्ट बनाया सर, और उसके 1 माह गुजर गया सर, कोई रिलीफ दिया नहीं सर, 1 रुपये का। 1 माह में क्या रिलीफ के लिए देंगे? वो ज़लज़ला मुतासरीन के लिए साल हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। सर बिल्कुल कोई रिहेबिटेशन के लिए कोई इंतज़ाम सर, या माइग्रेशन के किसी और जगह मुंतकिल करने के लिए कोई निज़ाम तो करना चाहिए सर। और भी उधर बढ़ना थ्रेट है सर, और भी सैलाब आ सकते हैं। अभी पूरा पाकिस्तान में 70% सैलाब से मुतासर है सर। तो इसका क्या हल है? क्योंकि आपका जो इलाका है वो ज़लज़ला प्रोन भी है, डिज़ास्टर प्रोन भी है, सारे मसले तो हैं। तो क्या आपके जहन में, मकामी लोगों के जहन में क्या हल है इसका? सर इसका हल ये है सर, इनको रिहेबिटेशन का कोई निज़ाम बना ले, और सर इनका अखराजात, जिनके स्टूडेंट का साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है सर, वहाँ के सबसे बड़े मसले है सर, उधर के स्टूडेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है सर, वो स्कूल नहीं जा पा रहा, उनके एडमिशन फीस, उनका डेली लाइफ का सर्वाइवल करने के लिए कोई प्रोसेस है सर, हुकूमत की तरफ से कोई वो नहीं है सर। सही। तो स्पेशली करंट हुकूमत को चाहिए सर, करंट मिनिस्टर को चाहिए, स्टक यूनियन से सर, बेसिकली स्टक यूनियन इसलिए इग्नोर किया जाता है सर, यहाँ 80% वोट वज़ीर हसन को पड़ता है सर, तो 20% एडवोकेट अब्बास को। तो सर राज नासिर को इधर से वोट पड़ता नहीं। हाँ, कुछ इलाके हैं, कुछ वोट है सर राज नासिर बाकी लोगों का, तो इसको नज़रअंदाज किया जाता है सर। सबसे बड़ा रूंदू में पॉपुलेशन के लिहाज से स्टक है सर। ठीक ठीक, नज़रअंदाज किया जाता है, सही। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हमारे हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि जल्द से जल्द इनको रिहेबिटेशन का इनके लिए कोई इक़दाम उठाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा मैं आशिक भाई अभी फॉरेस्ट के बात कर रहे थे, इसके बैकग्राउंड में सर मैं खुद वज़ीर साहब का नाम भी मेंशन किया सर, वज़ीर हसन के, तो मैं खुद वज़ीर हसन के साथ इस दौरान मैं भी ऐसा फॉरेस्ट स्टूडेंट सर, मैं भी फॉरेस्ट्री कर रहा हूँ, तो इसके पॉपुलेशन कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है सर, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके वहाँ बाकायदा मीटिंग हुआ है सर, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी की, नाम जारी किए है सर। तो उसके बाद तो आशिक भाई से मेरे जैसे एक सवाल है, 1.5 साल गुजर गए हैं सर, आपको अभी आता है 1.5 साल? हुकूमत के कोई प्रोसेस होते हैं, हुकूमत के कोई एक निज़ाम होते हैं सर, 1.5 साल गुजर गया, आपको अभी आता है? ठीक है, आशिक साहब से आपके सवाल का जवाब भी लेते हैं, लेकिन हमें फिर किसी और प्रोग्राम में ये जवाब लेना होगा, और फिर आपके जो और मसाइल होंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपका शुक्रिया, तीनों मेहमानों का शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सारी चीज़ें, बातें इन्होंने खुद ही बताई हैं। देखें, नज़रअंदाज मैंने शुरू में इस लफ्ज़ यूज़ किया था रुंदू के हवाले से, जो अभी हक़ाइक़ सामने आए हैं, इससे लगता है कि नज़रअंदाज से भी कोई सख्त अगर लफ्ज़ है तो वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सैलाब मुतासरीन, ज़लज़ले के मुतासरीन, और जो छोटी सी जगह है, अगर इसमें भी नौकरियों के हवाले से आवाम को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मेरे ख़्याल में वज़ीर साहब, राजा नासिर साहब को भी सोचना चाहिए, वज़ीर आला को भी सोचना चाहिए। रिहेबिलिटेशन का ये मसला गरीब लोगों का, ये किधर जाएँ? अगर आप लोग नहीं करेंगे तो ये किधर जाएँ? ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? ये इनको अद्वियात कौन देगा, तालीम कौन देगा, फीसें कौन देगा? इनको सेटलमेंट के लिए, ये पाकिस्तान है भाई, ये रुंदू है, यहाँ पे कौन से वो कानून के ख़जाने हैं कि ये खुद से जाके आबाद हो जाएं? कुछ रहम करें, आप हुक्मरान हैं, कल आप खुद कहते हैं कि सवाल जवाब होगा आपको। जो रियासत मदीना है ना, मेरे ख्याल में एक
سائٹ کا کوئی کنارہ گلگت بلتستان بھی ہوگا اور اس میں شاید رندو بھی ہوگا تو آپ خود ہی اس کو ذرا دیکھیں, آپ کی مہربانی ہوگی. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.